हेलो गाइस। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे। तो इसको आप गवर्नमेंट की वेबसाइट से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिफॉर्म्स इन इंडियन इकोनॉमी आर ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। Various ministries and departments are implementing government's strategic programs and policies to enhance the economic growth. Government is using a bottom-up approach in the process of preparation of economic policy. The COVID-19 pandemic endangered a once-in-a-century global crisis in 2020. Faced with unprecedented uncertainty at the onset of the pandemic, India focused on saving lives and livelihood of its citizens by its willingness to take short-term pain for long-term gain. India's response stemmed from the human principle that while GDP growth will recover from the temporary shock caused by an intense lockdown, the human lives lost cannot be brought back. तो इंडियन गवर्नमेंट की जो अप्रोच है वो अपने जो सिटीजन्स है उनको बचाने के लिए कुछ टाइम का जो लॉस होगा उसको बियर करने को तैयार हैं, क्योंकि जो भी इकोनॉमी गिरेगी, जो भी लॉस होगा उसको फ्यूचर में कवर किया जा सकता है। लेकिन अगर लॉकडाउन ना लगाया जाए तो इसका नतीजा ये होगा कि जिन लोगों की लाइफ चली जाएंगी लॉकडाउन ना लगाने की वजह से, उसको उनकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता है। तो नेक्स्ट, इंडियन गवर्नमेंट कंटिन्यू टू फोकस ऑन इकोनॉमिक रिवाइवल एज इट्स प्रायोरिटी. Key initiative taken inter alia include Make in India, Startup India, Ease of Doing Business reforms. Digital technology has been the sprint runner of this year that enabled us to tide over the disruptive effects of the pandemic. Central government is creating a conducive environment by streamlining the existing regulations and processes. The upturn in the economy while avoiding a second wave of infections make India a sui generis case in strategic policy making, of being fearless to choose the road less traveled. India's human-centric policy response to the pandemic tailored to India's unique vulnerabilities demonstrated the power of upholding self-belief under immense uncertainty. India transformed the short-term trade-off between lives and livelihoods into a win-win situation in the medium to long term by both saving lives and livelihoods. Empowered by vision and foresight, India turned this crisis into an opportunity by ramping up its health and testing infrastructure and implementing a slew of seminal reforms to strengthen the long-term growth potential of the economy. The government launched a support and outreach program for helping growth, expansion of micro, small and medium enterprises sector. In addition, efficient financial intermediation and macroeconomic stability through prudent fiscal and monetary policies are other efforts initiated by government to increase growth in the country. Overview of Indian economy. Indian economy to some extent has registered the economic slowdown despite continued fall in the global economies. The stability was marked by good governance through major domestic as well as foreign policies catering to the development of the economy. The initiations of various reforms have stimulated Indian economy that registered a steady pace of economic growth. Hence, growth of real GDP has been high with average growth rate of
6.7% in the last 5 years. इंडिया की जो रियल जीडीपी ग्रोथ है, अगर हम एवरेज लेके चलें लास्ट 5 ईयर से, यानी कि 2015, 16, 17, 18, 19, 20, तो एवरेज जो ग्रोथ है जीडीपी की वो 6.7% है। यानी कि इंडियन इकोनॉमी ऊपर जा रही थी। डेफिनेटली अब कोरोना महामारी के कारण थोड़ी सी गिरावट आएगी, में भी ज़्यादा भी गिरावट आए, बट इन द फ्यूचर इंडियन गवर्नमेंट ऐसे मेजर अपना रही है कि शॉर्ट टर्म लॉस होगा लेकिन उसके लोगों की जान बच जाएगी एंड उसकी मैन पावर होगी, तो इन द फ्यूचर वो उस चीज़ को रिकवर कर पाएंगे। लेकिन अगर अभी लॉकडाउन नहीं लगाया तो उसका नतीजा ये होगा कि लोग भी ज़्यादा मरेंगे और आफ्टर सम टाइम सारे बिजनेसेस वैसे भी बंद हो जाएंगे या उन पे भारी इफेक्ट जो है वो देखने को पड़ेगा। Indian economy grew by 4% in 2019-20, while experiencing some moderation in growth when compared to the previous year. The moderation in growth is mainly on account of lower growth in various sectors as mining, quarrying, manufacturing, electricity, gas, water supply, and other utility services. Construction, trade, repair, hotel and restaurant and financial services as compared to their growth in previous year. तो जो 2019-20 यानी कि कोरोना काल की जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें गिरावट आई और इंडियन इकोनॉमी 4% की वृद्धि दर्ज हुई, जबकि पहले 6, 7, 5 यानी कि पहले ज़्यादा थी। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यह है कि कोरोना की वजह से वेरियस जो इंडस्ट्रीज हुई हैं, जैसे कि वो है माइनिंग, क्वायरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, अदर यूटिलिटी सर्विसेज जहाँ पे मैन पावर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, ट्रेड, रिपेयर, कंस्ट्रक्शन, इन सब में गिरावट दर्ज की गई। अगर हम कंपैरिजन करें 2018-19 का 2019-20 से, the GDP at constant prices or real GDP for the year 2019-20 is estimated at 145.69 लाख करोड़। तो जो GDP थी 2019-20 के लिए 145 लाख करोड़ प्लस थी, जो कि 140 लाख करोड़ थी 2018-19 में, विद ए ग्रोथ ऑफ 4%। यानी कि जो जीडीपी थी उसमें वृद्धि दर्ज की गई थी, लेकिन कुछ जो सेक्टर थे जिनके हमने पीछे बात की उनमें गिरावट दर्ज की गई। तो 2019 और 20 में जो जीडीपी की ग्रोथ थी वो 4% थी, और कितना था? वो था 145 लाख करोड़। The GDP at current prices for 2019-20 is estimated at 203.51 lakh crore as against 188.87 lakh crore in the year 2018-19, which shows an increase of 7.8% during the year. The gross value added at constant basic prices witnessed a growth of 4.1% during 2019-20 against the growth rate of 5.9% in the year 2018-19. Next है the growth in real GVA during 2019-20 has been lower than that of 18-19 due to a negative growth in mining and quarrying, manufacturing, and lower growth in electricity, gas, water supply, and
अदर यूटिलिटी सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जिनकी हमने बात की। यहाँ पे टेबल में समझाने की यही डाटा दिया गया है। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग, इसका 2018-19 2.6% था, लेकिन ये बढ़ के 4.3% हो गया 2019-20 में, यानी कि इसमें पॉजिटिव जो था ये पॉजिटिव रिजल्ट है। लेकिन जो माइनिंग एंड क्वायरिंग, इसमें देखिए 0.3 था, तो 0.3 से -2.5% तक पहुंच गया। मैन्युफैक्चरिंग 5.3 से -2.4 पहुंच गया। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, अदर यूटिलिटी सर्विसेज 8% से 2.1% पहुंच गया। कंस्ट्रक्शन 6.3 से 1% पहुंच गया। तो इन सेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं। देखिए रियल इस्टेट 8.1 से 8.5 पे पहुंच गया। कुछ सेक्टर्स में इम्प्रूवमेंट है, लेकिन मैक्सिमम जो सेक्टर है, ज़्यादातर सेक्टर्स में नेगेटिव परसेंटेज शो की गई, क्योंकि कोरोना पैंडेमिक की वजह से ट्रैवल इंडस्ट्री जो है, टूरिज्म इंडस्ट्री जो जितनी भी है, उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। लोग जगहों पे घूमने नहीं गए, होटल्स बंद रहे, बाकी जितने भी बिजनेसेस हैं इसके रिलेटेड, उन पे नेगेटिव असर पड़ा है। एज पर द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट, द ऑल इंडिया ग्रोथ रेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड -7.7%। यानी कि देखिए 2020-21, यानी कि 2021 चल रहा है, तो 2020 और 21 के मतलब दोनों ईयर्स के जो फाइनेंशियल ईयर है, जो ग्रोथ रेट है, वो एक्सपेक्ट की जा सकती है कि -7.7% रहेगी। द पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेज इज एस्टिमेटेड एट 134,186 in 2019-20 against 125,883 for the previous year 2018-19, recording an increase of 6.6%. The per capita income in real terms at constant prices is estimated at 94,000 plus for 2019-20 as against 92,000 in 2018-19, with an increase of 22.5%. Inflation management is the key priority of the government. The inflation rate as measured by the WPI on year-to-year basis remained below 2% in the most part of current financial year. Inflation rate based on wholesale price index was 1.2% in the month of December 2020 against 2.7% in the month of December 2019, जिसमें कि कह सकते हैं कि ह्यूज गिरावट दर्ज की गई। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स फॉर द ईयर 2019-20 7.7% एज अगेंस्ट 5.6% इन 2018-19। नाउ अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी की। तो इसमें कहा गया कि गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश इनिशिएटेड सेवरल मेजर फॉर द स्पीडी प्रोग्रेस फॉर द बेटर लाइफ ऑफ पीपल ऑफ स्टेट थ्रू एफिशिएंट पॉलिसीज एंड कोऑपरेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हिमाचल की जो गवर्नमेंट है, स्टेट के जो गवर्नमेंट है, वो सेंटर की गवर्नमेंट के साथ सहयोग करके सेपरल मेजर्स, बहुत सारी पॉलिसीज लोगों के लिए लाई जाएंगी ताकि उनकी जो प्रोग्रेस है वो जल्दी हो और वो एक बेटर लाइफ जिए। इसमें लिखा गया नीचे, हिमाचल हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट
prosperous and fast growing economy in the country, but due to the impact of pandemic COVID-19, the economy of the state is expected to have a negative growth of 6.2% in the current financial year. यानी कि जो इकोनॉमी रहने वाली है वो -6.2% रहने वाली है 2020-21 में। 2019-20 में 4.9 थी, लेकिन वो प्लस पॉजिटिव में थी, अब नेगेटिव में जाने वाली है, जैसे कि हम ग्राफ में देख रहे हैं। एज पर द रिवाइज्ड एस्टिमेट्स, gross state domestic product at current prices is estimated at 162,816 crore in 2019-20. First revised estimate as against 1,49,442 crore in 2018-19. Second revised estimate showing an increase of 8.9% during the year. GSDP at constant prices in 2019-20 is estimated at 1,22,000 crore against 1,16,000 plus crore in 2018-19, registering a growth of 4.9% during the year as against the growth rate of 6.5% for the previous year. यानी कि इसमें भी गिरावट दर्ज की गई। The increase in total state domestic product at constant price is mainly attributed to 15.8% in commodity and personal services sectors, 2.5% in financial and real estate, 4.6% increase in transport and trade, 0.3% in manufacturing and 3.1% in construction. बाकी के जो सेक्टर्स हैं उनमें गिरावट दर्ज की गई। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई में -4.6% की, 3.1% की कंस्ट्रक्शन है। फूड ग्रेन प्रोडक्ट्स जो कि 2018-19 में 16.92 लाख मीट्रिक टन थे, अभी 15.94 लाख मीट्रिक टन है, यानी कि 100 मीट्रिक टन कम हुए हैं अप्रॉक्स। फ्रूट प्रोडक्शन 8.45 लाख मीट्रिक टन था 2019-20 में, जो कि 2018-19 में 4.95 लाख मीट्रिक टन था, यानी कि ऑलमोस्ट डबल से थोड़ा सा कम प्रोडक्शन हुआ 2019-20 में एज कम्पेयर टू 2018-19। और जो फ्रूट प्रोडक्शन था 2020-21 में, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दिसंबर 2020 तक की जो डाटा है हमारे पास, 4.82 लाख मीट्रिक टन है। The per capita income at current prices as per the first revised estimate for the year 2019-20 witnessed an increase of 7.9% as compared to 2018-19. As per the advanced estimates and on the basis of economic conditions up to December 2020, the impact of COVID-19, the contraction in the economy is expected to be around -6.2%. बताया जा रहा है कि जैसे अभी 2021 लगा है, 2021 लगा है, तो जब 2021 कंप्लीट होगा, दिसंबर तक का अगला डाटा आएगा, उसको 2020-21 का,
उसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि -6.2% इकॉनमी रहेगी, यानी कि अभी माइनस में है, हम पॉजिटिव से माइनस में गए हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ इन द स्टेट इज स्टिल गवर्नड बाय एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। इकोनॉमी हैज shown a shift from agriculture sector to industries and services at the percentage contribution of agriculture in total sale domestic product has declined from 57.9% in 1950-51 to, ये हमारा पीछे का डाटा शो कर रहे हैं, the share of industries and services sector which was 1.1 and 5.9% respectively। तो ओके, तो annual development budget for 2021 to 22 has been proposed at 9405 crore, which will be 19% higher than the plan size of current year 2021। यानी कि जो एनुअल डेवलपमेंट बजट है 2021-22 का हिमाचल गवर्नमेंट ने जो पेश किया है वो है 9405 करोड़ का। अगर इसकी कंपैरिजन हम करें लास्ट ईयर से, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे हमेशा पिछली साल का होता है और बजट हमेशा नेक्स्ट ईयर के लिए होता है, यानी कि जो अभी चल रहा है मार्च तक। तो अभी जो 2021-22 का जो बजट पेश किया है वो 9405 करोड़ का किया है, और अगर हम लास्ट ईयर से कंपैरिजन करें तो वो उससे 19% ज़्यादा है। इसमें बताया गया कंटेनमेंट ऑफ प्राइसेस इज ऑन द प्रायोरिटी ऑफ गवर्नमेंट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन इन एचपी ड्यूरिंग 2020 to 2021 बाज 5%। नेक्स्ट बता रहे हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट हमें मिल गए। टूरिज्म इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिवेन्यू जनरेशन एंड जनरेटर ऑफ डाइवर्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। A significant rise was noticed in the domestic as well as foreign tourist inflow during last few years, but due to COVID-19 there is a sharp decrease of 81% in tourist arrival up to December 2020, which is evident from the table 1.2 below। Priority of government has always been to implement social welfare program। तो इसमें जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उसके बारे में बताया गया। देखिए, माई GOV पोर्टल स्टार्ट की गई है। इसमें जितने भी हिमाचल के सिटीजन हैं, यानी कि उनको वो पार्टिसिपेट करें, किसके लिए? प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। यानी कि हिमाचल में जितने भी लोग हैं वो हिमाचल की प्रोग्रेस में, हिमाचल की डेवलपमेंट में जिनके कोई काम होंगे, तो यहाँ पे माई GOV पोर्टल जो है himachal.mygov.in पे जुड़ के गवर्नमेंट को अवगत करा सकते हैं। इसके लिए इस पोर्टल का स्टार्ट किया गया है। हिमाचल हेल्थ केयर स्कीम, जिसे हिम केयर भी कहते हैं, हिम केयर स्कीम के अंतर्गत कैशलेस ट्रीटमेंट करवाई जाएगी उन फैमिलीज की जो उसमें रजिस्टर्ड होंगी। अंडर दिस स्कीम 4.62 लाख फैमिलीज हैव बीन रजिस्टर्ड एंड 1.25 लाख बेनिफिशरीज हैव अवेल्ड 129.97, यानी कि 130 करोड़ कैशलेस ट्रीटमेंट सिंस द इंसेप्शन ऑफ दिस स्कीम। नेक्स्ट, सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। Under this scheme, the government provides top-up coverage of up to 30,000 per senior citizen in the state. This scheme will cover
ऑल सीनियर सिटीजन्स वो आर द स्मार्ट कार्ड होल्डर्स ऑफ राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। तो इस यहाँ पे बताया गया है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम स्टार्ट की है गवर्नमेंट ने। तो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम क्या की है? हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में ये होता है कि जब आप बीमार पड़ते हैं, आप एडमिट होते हैं, आप दवाई लेते हैं, तो उसका खर्चा इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो यहाँ पे ये है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एक और योजना है। तो राष्ट्रीय जो भी सीनियर सिटीजन उसमें रजिस्टर हैं उनको राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से पैसे तो मिलेंगे, लेकिन प्लस गवर्नमेंट की तरफ से 30,000 तक का टॉप अप कवरेज भी मिलेगा। ओल्ड एज पेंशन स्कीम, ओल्ड एज पेंशन स्कीम के अंतर्गत 60 टू 70 ईयर के जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उनको 850 मिलेगा, और उनकी जो इंडिविजुअल इनकम है 35,000 से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये शर्त जो है वो सिर्फ 60 टू 70 ईयर के लिए है। जो भी पर्सन है 60 टू 70 ईयर के हैं उनको 850 पर मंथ दिया जाता है, लेकिन उनकी इनकम 35,000 से कम होनी चाहिए ईयरली, एनुअली। लेकिन जो लोग 70 साल के ऊपर के हैं उनको 1500 दिया जाता है, ऑलमोस्ट दुगना, दुगने से थोड़ा सा कम 1500 दिया जाता है। उनके लिए कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं है, और इसके लिए 42,746 अराउंड लाख हैज बीन स्पेंट अप टू दिसंबर 2020 अगेंस्ट द बजट प्रोविजन ऑफ 50,562.92 लाख। बजट में प्रावधान था 50 लाख का, उसके लिए 42 लाख रुपए खर्च किया जा चुका है। नेक्स्ट बता रहा है कि स्टेट हैज मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन द डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। द टोपोग्राफिकल वेरिएशंस एंड अल्टीट्यूडनल डिफरेंसेस कपल्ड विद फर्टाइल डीप एंड वेल ड्रेन्ड सॉइल्स फेवर द कल्टीवेशन ऑफ टेम्परेट टू सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स। इसमें हॉर्टिकल्चर के बारे में थोड़ा सा बताया गया। ड्यूरिंग 2020 टू 21 1340 हेक्टेयर का जो एडिशनल एरिया था उसमें फ्रूट प्लांट लगाए गए हैं, और 2589 हेक्टेयर में पहले ही उसको प्लांटेशन के अंतर्गत लाया जा चुका है, और 7.9 लाख फ्रूट प्लांट अलग अलग स्पीसीज के ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जा चुके हैं दिसंबर 2020 तक, क्योंकि ये जो डाटा है वो दिसंबर तक का है। वेजिटेबल्स में भी 8.7% की ग्रोथ दर्ज की गई है, जो कि और बढ़ने की संभावना जताई गई है इकोनॉमिक सर्वे में। Himachal Pradesh continue to take various steps to achieve its target in the area of climate change mitigation. इसमें जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आता है हाइड्रो पावर के बारे में अब इसमें फोकस में लाया जाएगा, क्योंकि हाइड्रो पावर जो है वो इकोनॉमिकली वायबल है, नॉन पॉल्यूटिंग है, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल है। तो जो इन्वेस्टर्स हैं 2 मेगावाट तक के प्रोजेक्टर लगा सकते हैं, और
तो प्रेफरेंस दिया जाएगा वो 5 मेगावाट तक के प्रोजेक्ट के लिए दिया जाएगा। जो एनुअल डेवलपमेंट बजट है 9,405 करोड़ दिया गया है। which will be 19% higher than the plan size for of current year. ओके, तो हम अभी जो योजना थी हिमाचल गवर्नमेंट की उसकी स्टडी कर रहे थे। ओके, हिमाचल में स्मार्ट सिटी जो है वो 2 ही हैं, अगर कभी क्वेश्चन आता है तो। देखिए, ओल्ड एंड एज पेंशन स्कीम का हमने किया, मुख्यमंत्री आवास योजना, इसके तहत गवर्नमेंट जो है वो 1.5 लाख प्रोवाइड करवा रही है गरीब फैमिलीज को, जिनके की नेचुरल कैलमिटीज में जैसे कि बिजली गिर गई, फ्लड आ गया या ज़मीन धंस गई, उसके लिए 1.5 लाख रुपए गरीब परिवारों को दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ही 1,000 गरीबों के लिए नए हाउस बनाने का लक्ष्य है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री 1 बीघा स्कीम। इसके अंतर्गत 1.5 लाख जो रूरल वुमेन हैं उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाएंगे, यानी कि उनको कुछ रोजगार के अवसर दिए जाएंगे, कुछ काम सिखाया जाएगा अंडर मनरेगा। तो मुख्यमंत्री 1 बीघा स्कीम जो है वो रूरल जो इकोनॉमी है हिमाचल की उसको बूस्ट करेगी। नेक्स्ट है ई उद्यान पोर्टल। ई उद्यान पोर्टल में जो हॉर्टिकल्चर, जो फूल उगाना चाहते हैं, फूलों से संबंधित खेती करना चाहते हैं, अगर कुछ इंफॉर्मेशन लेनी है, जो भी कुछ उनको जानना है, वो ई उद्यान पोर्टल पे जाके उनको घर बैठे सारी जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट है सौर सिंचाई योजना। देखिए, जैसे नाम से पता चलता है सोलर के रिलेटेड है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है फार्मर्स की जो इनकम है उसको 2022 तक डबल करना है। इसके लिए क्या करेगी स्टेट गवर्नमेंट, क्या करेगी, सोलर पंप सेट प्रोवाइड करवाएगी फार्मर को, किसके लिए, एग्रीकल्चर इरिगेशन पर्पज के लिए। और अंडर दिस स्कीम गवर्नमेंट भी प्रोवाइड 90% फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स और परचेज ऑफ पंप सेट्स। जो भी पंप सेट लगाने उसके लिए 90%, जो कि काफ़ी बड़ी रकम है, वो किसानों को प्रोवाइड करवाई जाएगी। और जो बड़े किसान हैं या बाकी के जो लोग हैं वो भी लेना चाहते हैं तो 80% सब्सिडी मीडियम फार्मर है, बिग फार्मर है, उनको प्रोवाइड करवाई जाएगी। नेक्स्ट है सीनियर, ये हमने कर दिया है। मेधा प्रोत्साहन योजना 2021। इससे पहले अटल भर्ती योजना। अटल भर्ती योजना के अंतर्गत 1ली से 12वीं कक्षा के जो भी छात्र हैं उनको फ्री यूनिफॉर्म दी जाएगी। 2 सेट फ्री यूनिफॉर्म के दिए जाएंगे। और फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में 8,30,945, यानी कि 8,31,000 अप्रॉक्स स्टूडेंट्स जो थे उनको यूनिफॉर्म दी गई थी। और इसके लिए 73.50 73 करोड़ का खर्चा आया था गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट ने बियर किया था। गृहिणी सुविधा योजना। गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन दिए जा गए हैं ताकि
प्रदूषण कम हो, धुआं कम निकले और पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट बना रहे स्टेट का। इसके लिए 2.90 लाख लोगों को, गृहिणियों को, फैमिलीज को प्रोवाइड करवा गए गैस कनेक्शन। नेक्स्ट है मेधा प्रोत्साहन योजना। इसके अंतर्गत 1 लाख रुपए दिया जाता है उन स्टूडेंट्स को जो मेरिट में आए हैं और अगर वो मतलब किसी भी बाहरी जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से कोचिंग करना चाहते हैं। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन। जो मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन है उसके लिए 1100 पे आप बात कर सकते हैं मुख्यमंत्री से, यानी कि आप डायरेक्ट मुख्यमंत्री से ही बात कर सकते हैं, आप उनके पीए से भी बात कर सकते हैं। तो यानी कि लोगों का जो फैसिलिटीज़ है उसके लिए ये किया गया है। इसके लिए मोबाइल में आप 1100 डायल कर सकते हैं। अगर आपको ईमेल करनी है cmoffice@hp@gov.in पे ईमेल कीजिए। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। ओके, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना जो है उसमें यंगस्टर्स हैं उनको 25% की सब्सिडी दी जाती है। अगर कोई 100 रुपए की चीज़ लेता है, कोई यंग एंटरप्रेन्योर है स्टेट का, तो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत उसको वो 75 रुपये में पड़ेगी। और अगर कोई फीमेल है तो उसको वो सिर्फ 70 रुपये में पड़ेगी। ये मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत दिया जा रहा है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना। मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना के अंतर्गत 27 स्टार्टअप जो है वो स्टार्ट किए गए हैं 8 सेंटर्स में, और 3 जो एंटरप्रेन्योर थे उनको अवार्ड भी दिया गया है। नेक्स्ट है जनमंच योजना। 2018 को जनमंच स्थापित किया गया था। किसके लिए? ताकि जनता से सीधा संवाद स्थापित हो सके और उनके जो भी दुख हैं, जो भी कार्य है, उसके बारे में उस डायरेक्ट सरकार को बता सके। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट strategy is to create a waste free cities town and provide clean and pollution free environment in the urban areas of हिमाचल प्रदेश। ये इनका मिशन है। स्मार्ट सिटीज, हिमाचल में 2 ही स्मार्ट सिटीज बनने जा रही हैं फिलहाल। सक्षम गुड़िया बोर्ड हिमाचल प्रदेश। वुमेन की सेफ्टी, सिक्योरिटी, एम्पावरमेंट, अपलिफ्टमेंट और क्राइम्स के अगेंस्ट के लिए एक बोर्ड का गठन किया गया है। कोई हेल्पलाइन बोर्ड का गठन किया गया है ताकि बोर्ड मीटिंग करके ऐसी ऐसी नीतियां बनाएंगे जिससे कि महिलाओं की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित की जा सके। नेक्स्ट है एक बूटा बेटी के नाम। फॉरेस्ट कंजर्वेशन और डॉटर्स की इम्पोर्टेंस समझने के लिए एक स्कीम स्टार्ट की गई है। इसके अंतर्गत क्या होगा, जब भी किसी की बेटी होती है तो उन लोगों को एक किट दी जाएगी। किट मीन्स एक पौधा दिया जाएगा पेरेंट्स को ताकि वो लगा सकें यादगार के तौर पे, या कुछ भी कह सकते हैं। उत्तम पशु पुरस्कार योजना। उत्तम पशु पुरस्कार योजना के अंतर्गत अवार्ड दिया जाता है उन फार्मर को जिनकी गाय या भैंस जो भी है 15 लीटर या उससे ज़्यादा मिल्क एक दिन में देती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना। इस योजना के अंतर्गत 6000 पर साल का दिया जाता है उन किसानों को जिनके 2 हेक्टेयर से कम का लैंड है, यानी कि 2 हेक्टेयर से कम की ज़मीन जिनकी है उनको 6000 हर साल का मिलेगा। नेक्स्ट है जनधन योजना। जनधन योजना का लक्ष्य है कि शहरी या ग्रामीण कोई भी निवासी हो उसको मेन स्ट्रीम बैंकिंग सिस्टम में लाया जाए। उसका मतलब यह है कि उनके अकाउंट्स खुलवाए जाएंगे जो कि जिनके नहीं खुले हैं। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना।
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 3.35 लाख फैमिली को गोल्डन कार्ड दिए गए हैं और 3 लाख फैमिलीज में से 77,000 प्लस बेनिफिशरीज हैं, उनको 80 करोड़ की कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा भी दी गई है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये वाली जो स्कीम थी 18 फरवरी 2016 को प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च की गई थी। इसमें क्या होता है कि जो फार्मर के जो प्रोड्यूस है, जैसे जो प्रोडक्ट जो भी उनका खेती होती है, फिर जो अनाज उत्पन्न होता है उसका इंश्योरेंस कर दिया जाता है। इट वॉज फॉर्मुलेटेड इन लाइन विद वन नेशन वन स्कीम थीम बाय रिप्लेसिंग। हाँ, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है उससे पहले 2 स्कीम थी, एक थी नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम और एक थी मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। दोनों को ख़त्म कर दिया गया, या कह सकते हैं दोनों को मिला के ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसको स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसके अंतर्गत किसानों को लोन मिलेगा 6.50% पर एनम की दर से और वो 20 साल तक के लोन ले सकते हैं। द डेडलाइन फॉर अवेलिंग द प्रधानमंत्री आवास योजना 2021 क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम फॉर मिग 1 एंड मिग 2 कैटेगरीज हैव बीन एक्सटेंडेड टू 31 मार्च 2021। तो ये हमने पढ़ा जो इकोनॉमिक सर्वे था। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 2 विच इज स्टेट इकोनॉमी, पब्लिक फाइनेंस एंड टैक्सेस। थैंक यू।